Who gave them the authorization to change something which will cost us? एएफएफ के ड्राफ्ट से प्रमोशन एलिगेशन हटा दो। So what has ISL done? It's fucked up. एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे टर्म लाने चाहिए थे जो इंडियन फुटबॉल के बेनिफिट में ऐसे हो सकते थे। तूने क्या किया इसके बारे में? मैं लड़ा हूँ यार, कुछ निकला नहीं, अलग बात है, लड़ा हूँ। Welcome back to another new video of Desi Dribblers. Or today we have with us Ranjit Bajaj sir. It's great to have you here, sir, Ranjit sir. And आपने टाइम निकाल के हम लोग से बात करने के लिए आए एंड इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड हम लोग बात कर पा रहे हैं आज आपके साथ एक स्पेशल एपिसोड में. So thank you and for joining, sir. It's my pleasure, guys. I've been wanting to do this for a long time, and we've been trying to fix it for a long time. But the kind of things which are going on right now, so because of my time in Supreme Court and High Court the whole day, which is the most hated thing I want to do. I just want to spend all my time in sitting next to a football field. But we have to do something about it. See, because end of the day, it doesn't matter how much fans support Indian football, how much love they have, or how much hard work I do to produce new players. जब तक हमारे जो टॉप पे है वो गंद पाई जाएंगे and they keep on putting in their corrupt people, that means no matter how much hard, how good the players are, they'll never reach the top. For example, if you see Uzbekistan, in 2018 they were 127, we were 125. They're 58 man, and look at us, we're still the same. And they don't have any money, they don't have any big budgets, they don't have any, they're not a rich country, they don't have big huge leagues or like the Indian Super League. I mean, their players, their top players play in our I League, by the way. So the amount of money they're getting is between $2,000 and $4,000 जो उनके top players हैं. तो but do they do well in club competitions when they all Uzbekis playing? Yes, they do very well. Are there any foreigners playing in Uzbekistan league? No, they are not. ये मैंने फिर decide कर लिया कि देखो भाई, why people kept on telling me that why don't you get into Indian football administration and politics, because that was never the aim. The aim was to get India to the World Cup. हाँ, एक तरीका है कि administrator बन के तुम World Cup 2034 host कर लो, so I've got you to the World Cup. That's one way, yes. But I want to get there the right way. जो मैं कहता रहता हूँ, promotion, relegation, that means merit, so that means we qualify for the World Cup. And with this new team coming, everybody saw कि मैंने पहले 3-4 या maybe even 5 महीने या 6 महीने बहुत support किया था कल्याण चौबे का. My personally I did it. And even everywhere. Why? Because no matter reputation was really bad, but his reputation was not good. But you have to give everybody a chance. जो आएगा तुम उसको शुरू से गाली निकालोगे, maybe he has good intentions. You have to give somebody a chance to prove himself. And somehow, because of his luck, not because of his work, India started doing very well in 2023. We had the best year India's ever had in the last, ever in the history of Indian football, because we've never won 4 titles or 3 titles in 1 year. तो उसमें से हमने जो countries को हराया, वो they were almost qualifying for the World Cup 1 year after that. So looking at that run of results, I was very happy, but I didn't realize that which I should have. ये फुटबॉल में कभी immediate results नहीं आते, तो इसका मतलब इसका काम है, उसके results नहीं आ रहे हैं, ये पहले जो काम था उसके आ रहे हैं. अब क्या हो रहा है, जो अब results आ रहे हैं वो current administration जो पिछले 3 साल से काम हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है. And it's not 3 साल, it's actually 5 years no work has been done, because COVID में तो फुटबॉल वैसे ही बंद हो गया था. तो 2 साल वहाँ पे लूज हुआ, उसके बाद 3 साल इन जोकर्स की वजह से लूज हो गया. So it's 5 years. So that means if you imagine मेरे जो हमारी लीग के जूनियर लीग्स, I have from under 6, 7, 8, 9, but all other teams have under 13, under 15, under 17. So मतलब 12 साल, 13, 14, 15, 16 ये आपके लड़के होते हैं 4 years में. So you got maximum 4 years, maybe 5 years. मतलब 2010 to 15 या उससे पहले 2008 to 2013. तो ये 5 साल का मतलब ये पूरा बैच कि आपका अंडर 13 से 18 का कोई डेवलप ही नहीं हुआ. That's what it means, losing 5 years of football. For example, जो 20 साल उन्होंने फुटबॉल की है, हमने पूरा साल मैंने लड़कों को यहाँ पे रखा है 65 days a year with them, so that they can play in the league, junior league और सब junior league. और पहले जहाँ पे हम हमारे ग्रुप में 6 टीम होती थी, we used to play home and away, that means at least 10 matches in the initial rounds. And because Minerva used to always do well and qualify, we used to get around 20 matches, which is not bad, because then we used to play Super Toto and Reliance and other tournaments like that, and we used to make them, even them play around 60 matches a year. We played 4 matches this year in the qualifying round of sub junior and junior, single leg. और सारा बजट कहाँ गया? Apparently वो Igor Stimac ने कुछ पैसे देने थे वहाँ चला गया. So it is so shocking to see कि Indian football में for one person's ego we had to pay, because if suppose मेरी किसी से लड़ाई हुई है, but I know कि अगर मैंने पैसे देने हैं, मेरा लॉस हो रहा है ना, so I have a right to fight with you. जब आपकी लड़ाई की वजह से पैसे देने हैं गवर्नमेंट ने, टैक्सपेयर ने, हमारे जैसे फुटबॉल फैंस ने, you have no right to fight with the guy, because you better buddy fold your hands and sit in front of him and say sorry. Why? Because 6 करोड़ तेरे बाप के नहीं है, वो हमने देने हैं. और वो कहाँ से लिए इन्होंने? ना ऐसा से लिए, ना IW आई लीग से लिए, कहाँ से लिए? यूथ डेवलपमेंट से. यूथ डेवलपमेंट की लगी, और फिर कहते हैं हमने विजन 2047 करना है. So I mean, if you're going to take, there's going to be no spending on the youth, and you're under 15 and you're under 13 are going to play 4 matches in a year, then how are you thinking that you're going to develop the youth? तो सर जैसे आपने बोला कि मतलब जो जैसे कोचेस वगैरह जैसे चेंज हुए, उसके बाद
मतलब पैसे कहाँ से, मतलब वो हमारे पैसे उसके बाद जो मिले वो जितने कम बजट में वैसे ही फंक्शन करती है। उसके बाद भी हम लोग ने देखा कहाँ यूथ डेवलपमेंट से आपने जैसे बोला कि पैसे उधर से लिए गए। सो डू यू थिंक जो कोचेस का जो कोचेस अगर सैक भी करना होता है या फिर उनसे पहले एकदम बात कर लेना चाहिए था, एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे टर्म लाने चाहिए थे जो इंडियन फुटबॉल के बेनिफिट में ऐसे हो सकते थे भाई जो थे चीज। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, वो टर्म्स थे, वो चेंज किए गए हैं टू टू no, all contracts have this that you pay him only for that time and give a period of 1 month or 45 days. Somehow this हम्म was changed, and this was changed now. So who gave them the authorization to change something which will cost us, not them? And do you think it was the right thing to do when it was just took 3 months of ये भी नहीं था कोई इंटरनेशनल मैच आ रहे थे, तो 3 महीने चुप करके बैठ जाते, वो चले जाता, फिर तुम जिस मर्जी को हायर कर लेते। अब तुमने उसको भी पैसे दिए, मनोलो को भी तुम उतने ही पैसे दे रहे हो, मतलब तुम डबल पैसे दे रहे हो। और जितना तुमने प्रोग्रेस सी ऑल सेड एंड डन अगेन बाय सी एंड ऑफ द डे, व्हाई आई वाज सपोर्टिंग कल्याण चौबे इन द बिगिनिंग, बिकॉज उसने भी रिजल्ट दिखाए नहीं थे। लाइफ में दो चीजें होती है, रिजल्ट्स एंड रीजंस नेवर, नोबडी काउंट्स, नोबडी केयर्स अबाउट रीजंस। कल्याण चौबे एंड द करंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिजल्ट्स हमें दिख गए हैं, एंड इंडिया हैज नेवर बीन एट अ वर्स्ट प्लेस। Why I supported Igor Stimac was because he gave me hope. He gave me light at the end of the tunnel. मैंने कभी जिंदगी में, तुम लोगों ने इस उम्र पे, you were lucky that you saw 3 titles, मैंने नहीं देखे थे यार। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी इंडियन फुटबॉल में, मरा रहा था मैं तब से कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए। And we were at home winning titles, man, one after the other. And then सारा crowd was singing वंदे मातरम and all those things, goosebumps, जो कभी इंडियन फुटबॉल में नहीं हुआ। तो I was the happiest man in the world. Why wouldn't I be? Because it was the dream coming true. We were just this much away. So we had one bad tournament or we lost one, but nobody went into the thinking ये हुआ क्यों। Because हमारे को एशियन कप में जब भेजा गया, तो हमारे को हमारे प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया था हम आपको चार्टर फ्लाइट लेंगे। सो अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। ये नहीं कि ओ यार उस फ्लाइट से नहीं गए ना, ये बात नहीं हुई। ये बात हुई कि वहाँ पे हमारे 3 प्लेयर जो पहुंचे हैं, वो मैच से 4 घंटे पहले पहुंचे हैं। 3 प्लेयर मैच के बाद पहुंचे हैं, हमारा बेंच भी पूरा नहीं था। पीपल डोंट इवन टेल हिम द ट्रूथ। इतनी बुरी हालत थी कि हमारे प्लेयर्स इन अ स्टॉप ओवर were sleeping for 8 hours on the floor of a airport. So and what was the other team doing? Preparing अफगानिस्तान से ड्रॉ करके। अफगानिस्तान वहाँ पे हमारे से 2-3 हफ्ते पहले पहुँच के वहाँ पे उसी स्टेडियम में वहाँ पे मैच खेल चुका था, and they knew it was at an altitude where you had to get used to it. So if you so सबके लिए बोलिविया में, साउथ अमेरिकन कंट्री बोलिविया, and La Paz is the place where the capital is there. That's the highest place where football is played, 3,500 meters. The worst record Argentina and Brazil have is in La Paz. तो अर्जेंटीना एंड ब्राजील भी कोपा अमेरिका में साला वहीं जाके हारता था। क्यों? Because you can't get used to the atmosphere. And it's just simple science, man. You ask any mountaineer, he'll tell you. And that you have to get acclimatized to the mountains. जब हम जाते हैं हम माउंटेन में, हमारे को भी बोलते हैं क्योंकि पहले 2 दिन आराम से करना, because you get used to it. There you have to not just, हम तो सिर्फ हॉलिडे करने जाते हैं साले, वो तो they were playing sports, and sports also contact sports and something which is with so much up down, so it really matters. So you basically आपने उनको बॉक्सिंग मैच के लिए अपनी कंट्री को भेजा और उनके दोनों हमारे हाथ पीछे बांध दिए, तो हमारे को ना रेस्ट मिला। वो महीने से वहाँ कर रही थी, हमारा वहाँ पे ISL चल रहा था, वहाँ से बीच में से उठा के भेज दी टीम किसने बनाई? कोच ने ना। जो कोच ने बनाई थी टीम, दैट वाज अ वेरी यंग टीम who had no injuries and no game time there. तो वो तो भेजे साथ में भेज दिया चेत्री को। क्यों? उसकी तुमने बेइज्जती करानी थी। या तो तुम पूरी टीम भेजो, संदेश झिंगन उस टाइम पे, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, जैक्सन थापा एंड ऑल, और you send total young team. Why did you have to send Chetri? And again, this is again Kalyan Chaube. And again, Chetri is not saying it out loud, but I know what he said out, that this is such a stupid exercise to do. Because he knew that we were going to get thrashed in the Asian Cup. This was only being happening because हम Indian fans की power इतनी थी कि हमने उनके पीछे पड़ के उनकी एंट्री दिलवा दी. Otherwise, they were right not to let us enter because we didn't deserve to enter at this stage. Because we were preparing for what? The World Cup qualifiers. And that was more important for us. ये हमने पहले एक बार गलती की थी, कब? और अभी तक भुगत रहे हैं, 1955 में. तब भी हमने कहा था हम ओलंपिक्स के लिए जाएंगे यार, ये क्या चीज़ है, हमने और वर्ल्ड कप छोड़ दिया. और वहाँ पे imagine if we had just gone to the, see in that time we were almost as good as anyone else, okay?
You saw the results in 50s, 60s, what we were doing. So imagine if he had. So how did cricket become big, यार? क्योंकि 83 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया. Indians believe कि हाँ यार, we can be world champions. The whole country started supporting them. Imagine if we were 55 में अगर हम थर्ड या फोर्थ आ जाते या मे बी इवन सेकंड, मे बी वी वन इट, क्या पता फुटबॉल में यार. Imagine what would have happened. So ये तब से चला जा रहा है यार. It's just been मैदान मूवी देख के लगता नहीं है कि तुम पुरानी मूवी देख रहे हो बहुत पुराने टाइम की. Because when I look at it, I can see that this is what is still happening in 2025. It's still happening in the IFA offices and in the AFF offices. The budget for their administrative expenses, matlab meetings, has gone up to 78 lakhs. Youth development has gone down. वाह क्या बात है. आपने जैसे सर बोला कि मीटिंग्स वगैरह के पैसे वो कुछ दिन पहले आई थिंक वो रिपोर्ट्स भी आए थे जो कॉफी पानी न्यूज़पेपर पे ज्यादा खर्चा हो रहा है जिससे ज्यादा यूथ डेवलपमेंट में खर्चा नहीं हो रहा. 7 लाख 8 लाख कुछ ऐसे खर्चा हो रहा है पानी. यूथ डेवलपमेंट पे खर्चा हो ही नहीं रहा. ये ऐसे लोग हैं. तो किसी लॉयर ने, आई डोंट नो हु ही वाज, बट सम लॉयर फ्रॉम केरला, एक्टिविस्ट लॉयर, एथिक्स कमीशन पे कंप्लेन की. एथिक्स कमीशन क्या होती है कि AIFF में जैसे प्लेयर स्टेटस कमेटी है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, एक अपील्स कमेटी है, एक एथिक्स कमेटी है. एथिक्स कमेटी में बहुत बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई वेरी सीनियर IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर हु दे कांट टच, वो लगाया होता है हेड, या जस्टिस कोई एक्स लगाया होता है. तो इस बार भी ऐसे जस्टिस सतीश चंद्र थे, वो एक्स हाई कोर्ट जज, उनको लगाया हुआ था. तो उन्होंने पहले नॉर्मल से मैटर्स 2-3 सुने और उसके बाद उनका लगाया गया था कि 2 लाख रुपीज मंथ, which by the way is very 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 low for a high court justice, because ये रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं सारे कि जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो उनके क्लॉज हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, बिफोर यू गो टू कोर्ट यू सपोज टू गो टू आर्बिट्रेशन. मतलब कि एक तुम कॉमन आर्बिट्रेटर में जाके तुम पहले आपस में कर लो, बिकॉज कोर्ट में जाके क्यों फंसना है, पैसे बहुत लगते हैं. तो ये आर्बिट्रेशन रन करते हैं जजेस एंड दे टेक अराउंड 20 lakhs पर हियरिंग, ओके, from the private companies, and they can give because उनको करोड़ों का decide करना है तो there's nothing, peanuts. So 2 lakhs this guy was doing, and he was doing a very good job, because all the people who are working in the committees here, they're not doing it for the money, because comparatively they would have got much more for the same time. And इनको बोला गया कि मेरे को 3 महीने से पैसे नहीं मिले, मेरे को दे दो, because मेरे को अपने PN को, स्टेनो को, सबको देने हैं यार. तो बिकॉज मैं तो यहाँ पे आ ही जा रहा हूँ और तुम्हारे जजमेंट्स भी लिख रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ. एक बार ही बोला, 2 बार, फिर उसने बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा. और जानबूझ के पैसे उसने क्यों नहीं दिए? बिकॉज साइनिंग अथॉरिटी कौन है? अनिल कुमार. अगली कंप्लेन किसकी सुननी थी? अनिल कुमार के अगेंस्ट, जो एक एक्टिविस्ट लॉयर केरला ने भेजी थी. तो इसका मतलब यही है कि मेरे पे केस हुआ है मर्डर का, और जो मेरा जज है उसकी जो सैलरी है मैं ही काट रहा हूँ. मतलब आई एम राइटिंग दिस. हाउ इज दैट ओके? And then what do? I don't pay him for 6 months, then he doesn't come to office, so it's automatically not heard. ये इनकी हरकतें हैं. For example, I am the head of competition committee and I decide, ओए, for development football, no foreigners in all state leagues. तो सारे फैंस कहते हैं यार वाह क्या डिसीजन है. मगर वो जो बंदे ने नो कहा था कि नो थिंग्स फॉर दिस, वो केरला का सेक्रेटरी था, जो अब अनिल कुमार है हमारा सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी. उसने क्यों कहा था? बिकॉज उसने केरला सुपर लीग में फॉरेनर्स खिलाने थे. सो सारी स्टेट्स की लीग की वैल्यू 0 कर दी, क्योंकि कोई अब अगर एक स्टेट लीग में सारे फॉरेनर्स इंडिया, अगर कहीं फॉरेनर्स नहीं खेल रहे तो सारे फॉरेनर्स अवेलेबल है सिर्फ एक स्टेट को, और एक स्टेट में फॉरेनर्स खेल रहे हैं तो सारे इंडिया किसको देख रहा है? सिर्फ उस स्टेट को. सो सारी स्टेट लीग्स गई. नोबडी वांट्स टू प्ले इन एनी स्टेट लीग एक्सेप्ट केरला सुपर लीग. और वो किसके पास है? इसके पास. और बैन किसने किए फॉरेनर्स? एक्सेप्ट फॉर केरला, एवरीवेयर इज बैन. फिर वो जो कंपनी है जिसको जैसे FSDL इज इन ISL या रिलायंस, वहां पे कौन रन कर रहा है? इज अ कंपनी कॉल्ड स्कोरलाइन. जो स्कोरलाइन कंपनी है, इट इज ओन्ड बाय द सन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैक्सिमम शेयर्स. इट वाज गिवन टू हिम, सोल्ड टू हिम 3 years ago. दिस कंपनी वाज फाउंडेड बाय अनिल कुमार, और अपने कंपनी को फाउंड करके प्रेसिडेंट के बेटे को शेयर देके उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी उसी को दे दिया. एंड देन नाउ ही हैज कम हियर आफ्टर. सो इट्स लाइक मी सेइंग
I'll make you president of India or I'll make you prime minister of India. Once you become prime minister, you give me a job. So how the hell is that okay? अगर सारे बंदे ऐसे होते, सारे IAS अफसर, IPS अफसर, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज ऐसे लगते, भाई तेरे को मैंने वोट दिया, मुझे लगा। और वही हुआ बिकॉज उसी ने, बिकॉज हाउ डू आई नो ही वोटेड फॉर हिम, बिकॉज 33-1 स्कोर था वोटिंग में और बाइचिंग भूटिया ने होपफुली अपने लिए वोट डाली थी, सो 33-1 था, so everybody voted for Kalyan Chaube, so he was one of them. And after voting, then that is why it's in the law that you can't just take up a position like this, paid position. You can take up an honorary position, but paid position, और paid again तुम्हारे बाप के पैसे हैं यार, हमारे पैसे तुम एक दूसरे को सैलरियां देते रहते हो और सैलरियां भी खुद ही फिक्स करते हो, और कितनी 10-10 लाख रुपए की। ओ माय गॉड यार, 10 लाख रुपए की सैलरी। आई मीन, तूने कभी जिंदगी में अपनी नौकरी की है? नहीं। तूने को कभी किसी ने 25,000 की सैलरी भी दी है? नहीं। बट यहाँ पे आके तूने 10 लाख की सैलरी लेनी। सो अब अगर होता ना कि वी आर डूइंग एज वेल एज स्पेन, यस गो अहेड गिव इट मैन, ठीक है, और वी आर BCCI, गो अहेड गिव इट मैन। बट यू आर AIFF जो भीख मांग रही है पैसों के लिए लोगों से जाके, बट तुम्हारे CEO को 10 लाख की सैलरी मिल रही है, जनरल सेक्रेटरी। हाउ इज दैट ओके? देन यू आर बाइंग न्यू SUVs वर्थ 33 लाख की जो कॉस्ट है, मतलब अपनी ऑन रोड मिला के, इंश्योरेंस मिला के 40 लाख की कार तुम ले रहे हो। व्हाई? बिकॉज वन ऑफ योर ऑफिशियल्स हैज टू ट्रैवल 500 meters फ्रॉम अ गेस्ट हाउस। और ये बातें, सी when somebody, one person says something, you know, you can say okay fine यार, he may be jealous और इसको नौकरी से निकाला इसीलिए कह रहा है। when 2 people say it, maybe नहीं यार, when 3 say it, when 4 say it, when everybody who is leaving the job is saying exactly the same thing, then there is something there. So first it started with Shaji, who used to be very very close. उन्होंने इकट्ठे मिलके प्रेसिडेंट बनाया है, उनको ही निकाला within 6 months, so you could come to know कि इस बंदे की सबसे बनती नहीं है। He was the closest to this guy and he's done this. And then the national team coach, he also said the same thing, get this cancer out of Indian football, we'll never go ahead. Then the legal head said the same thing, Nilanjan. Then the media head, Jaideep Basu, he said the same thing. Then Kosa Raju, who was his the last ex-co member from Andhra Pradesh, president of Andhra Pradesh FA, he said the same thing. And then when everyone is saying the same thing, that this guy is really corrupt and a lot of corruption is happening, then something needs to be done. For example, अब तुम्हारे को वहाँ पे इलेक्शन हुई, he was standing for BJP, Mankatala, some place like that from Bengal, bipolar way. तो वहाँ पे एक वीडियो निकला, मानिकतला, तो वहाँ पे ऑडियो निकला कि ये भाई साहब ने दूसरी पार्टी वालों को ऑफर किया कि तुम विड्रॉ कर लो और मैं तुम्हारे को AFF का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। मतलब ये तो हालत है भाई तुम्हारी कि तुम AFF के वाइस प्रेसिडेंट ऐसे बनाते हो कि तू उसके अगेंस्ट विड्रॉ कर रहे हैं इन सम इलेक्शंस ऑफ सम लोकल इलेक्शंस ऑफ बंगाल। ओ माय गॉड। सो उस चीज से पता लगता है हाउ लेस ही केयर्स अबाउट इंडियन फुटबॉल। बिकॉज इफ आई केयर अबाउट फुटबॉल, लाइक सपोज मैं आई एम रनिंग अ हॉस्पिटल एंड मेरे हार्ट सर्जरी करनी है, तो मैं ये थोड़ा कहूंगा साले तेरे को मैं हार्ट सर्जन लगा दूंगा, मुझे पता तू बंदा मार देगा यार, मैं हार्ट सर्जन लगाऊंगा तेरे को, तो बिकॉज़ यू डोंट नो हार्ट सर्जरी। सेम, सो दैट्स व्हाट ही इज, ही डजंट केयर कि दैट गाय मे बी एज वाइस प्रेसिडेंट किलिंग इंडियन, विल किल इंडियन फुटबॉल। इस थिंग इज उसने मेरे लिए क्या किया है, अच्छा इसको लगा दो। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हमारे, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर आवर नेशनल टीम्स? रंजन चौधरी, हाउ द हेल is he a good coach? No offense against him personally, but did we have better options? Yes. Did we have, yeah. So are we going backwards or forwards? Are we preparing for the future? So if you're preparing for the future, do you trust the youth or do you get a 75-year-old to do your under 19 team? Man, what the hell is wrong with you? And yes, he's a Bengali, so people will damn well fucking ask questions. Why the fuck is this guy here? What are his qualifications? What has he done in life? What national team has he taken care of? No answer. He's never taken care of any national team before. And he's been put. Why? Because he's close to the president.